Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. How have you been? Alhamdulillah, I am doing great. What about you? Good. Good. Hania also joined. Okay, Hania. Hania, your internet, I think some problem. Hania, now okay? Can you listen me? Yes, Yes. How are you? Good. fine. You are in the car, going somewhere. You are going somewhere. That's why this signal problem. Yes, Okay, maybe that's why signal problem is there, Hania. Okay, anyway, Sarah, we Yes, will ma'am. we will start. You start about some your incident or something past sentence. 10 minutes, then Hania's turn will come. Okay? Okay. वैसे मैम normally routine बता Yes, सकते anything. I woke up at 11 a.m. Okay. Then I went to the washroom. My teeth. I teeth my brush. I brushed my teeth. Sorry, I brush my teeth. Hmm. And I washed my face Hmm. and hand. Then मैंने I मैंने आपको कहा था ना या इस टेंस में जो पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस इन दैट फर्स्ट सब्जेक्ट देन आफ्टर दैट वर्ब विल कम ओके अगर पास्ट में बोल रहे हैं तो हमारी V2 आएगी ओके हानिया यू ऑल्सो यू अंडरस्टैंड दिस वन फर्स्ट सब्जेक्ट विल कम जैसे कि आई yes, यू मी ऑल उसके बाद वर्ब लाना है टीथ वगैरह उसके बाद ये चीजें बाद में आएंगी object will come later on third number or after that whatever in our sentence is there that is later on will come okay first what is subject then verb जो के काम है और जिस पे हुआ है थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट दिस ऑल थ्री देन लेटर ऑन वट एवर इज देयर ओके कंटिन्यू सारा I combed my hair. ed आएगा combed ed I combed my hair. Then I prepared my breakfast. हम्म Uh, my mom, uh, my mom and I माय मॉम my एंड आई अच्छा फिर मैंने मेरी मामा ने और मैंने ब्रेकफास्ट किया. we had you can say we had breakfast you can say like that also या वो My mom, मैंने आपको कहा था कि तीन तरीकों से कह सकते हैं वी हैड भी कह सकते हैं वी हैड ब्रेकफास्ट हमने ब्रेकफास्ट किया या इस तरह भी कह सकते हैं वी एट या इस तरह भी कह सकते हैं वी टुक ब्रेकफास्ट टुक टेक है टेक फर्स्ट फॉर्म है second form what is that in if we are speaking in past we should say we took breakfast three way is there to say this one okay I had my breakfast yeah I ate my breakfast yeah last one you can say like that I took my breakfast that all are past okay my as mom you and wish जोन सी मर्जी वर्ब इसमें लगा लो लेकिन सेकंड फॉर्म ओके पास्ट में बताना है वेरी गुड my mom and I we had breakfast. यस यू कैन से लाइक दैट गुड और हमने ब्रेकफास्ट में मतलब चाय ऑमलेट ये सब खा लिया हमने. वी ओके then we as I told you Sarah we can say these three verb कौन सी वर्ब मैंने आपको बताया था ईट होता है खाना होता है सेकंड फॉर्म यू कैन से एट ऑल्सो और यू कैन से टेक होता है टेक भी होता है खाना यू कैन से टुक ओके टुक भी बोल सकती हो बट सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में बोलना है ना then my sister and me I I I want to I go to market. सिस्टर एंड आई आएगा सिस्टर एंड आई Sister वेंट टू मार्केट went to market. ओके We come back from the house at नो 5 नो नो o'clock. फिर हम मार्केट से वापस आ गए. हाँ तो मार्केट लगाओ ना We come केम बैक बोलोगी वी केम we बैक we came back the market at 5 o'clock. हम्म Then फिर हमने चाय पी. वी एक हैड मिनट. टी ब्रेक यू कैन से प्लीज 1 minute. ओके सॉरी वो लाइट चली गई तो. नो इशू फिर हमने चाय पी. देन वी टी कैसे टी ब्रेक. बोलोगी कैसे बोलोगी हमने चाय पी वी टी फिर हमने चाय पी. वी टी ब्रेक. लेने की चाय लेने की इंग्लिश क्या है मैंने चाय ली लेने की मैंने चाय पी चलो इसकी इंग्लिश बताओ पी यानी मैं पास्ट सेंटेंस है तीन ड्रिंक. तीन तरीकों से कह सकती हो इसको भी ड्रिंक आई ड्रिंक है टी फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म यू कैन ड्रंक. से इन पास्ट देन फिर मैंने क्लास की तैयारी की. हम्म देन आई प्रिपेयर्ड.
my class. I studied some time for my class. You can say this one. अच्छा Yeah, I got ready. Got ready भी कह सकती हो. I got ready for my class. I got ready for my class. Then I attended Now my अब present continue tense आएगा. Present continue कौन सा होता है? जो जारी है. मैं अब ले रही हूँ. Okay. Translate this one. then now attending my online. Yes. Now I am attending my online spoken English class. You can say like that. ये attending. Okay, attending. Yeah, I am taking. You can say like that. Okay, both you can use. Okay, Hania. Now your turn. Yes, I woke up on 8 o'clock and I had meal. I brushed my teeth and washed my face and went for tuition. I came back to tuition and I played with cousins and I had lunch and Very good. I study my Studied. I ed लगाओगी. IED लगाएगा. Studied. Okay. I studied my books Hmm. and I watched cartoons in my mobile and On लगाओगी. and On. In नहीं आएगा. On my mobile. now I am taking my online class. Attending my online class. Well done. And you are doing something also. That also you can say, I am traveling. Now you are continue. भेल जारी है. I am traveling to go somewhere you can say. Okay. मैं कहाँ जा रही हूँ? You are in the car, I think, है ना? So you can say, Yes. I am at present, I am traveling simultaneously. एक word होता है simultaneously. Simultaneously होता है I am attending my class and simultaneously. Okay, ये vocabulary के लिए आप ये मत सोचो कि आप छोटी हो बेटा. You have to use this word also. That is simultaneously. Simultaneously सारा एक वक्त में अगर दो काम करना, जैसे कि ये क्लास भी अटेंड कर रही है एंड शी इज गोइंग समवेयर ऑल्सो. एक टाइम में दो काम हो रहे हैं ना इसके. देन यू कैन यूज दिस वर्ड आई एम साइमल्टेनियसली आई एम अटेंडिंग माई क्लास एंड आई एम ट्रेवलिंग टू समवेयर. वेयर यू आर गोइंग हानिया? Nano. I am going to Nano home. नानो हाउस. प्लेस नेम यू हैव टू से. प्लेस नेम कहाँ जा रही हो? ओके, आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर हाउस. ओके, नानो है या दादो है वो ग्रैंड मदर आएगा. ठीक है, ग्रैंड मदर हाउस. ओके, यू कैन मेंशन द प्लेस नेम लाइक वेयर शी इज लिविंग. यू कैन मेंशन प्लेस नेम, सिटी नेम, इवन you can say Gujarat. Yeah, I am traveling to Gujarat with my mom and with my brother. We are going to visit my grandmother. Okay, well done. Next, start our lesson. We left here yesterday. Universal truth. Okay, Hania. Universal truth क्या होता है? That is कायनात की सच्चाइयाँ. Okay, सारा. कायनात की सच्चाइयाँ जो कि हमने पहले भी बोला था. फॉर एग्जाम्पल हमने यहीं पे छोड़ा था ना लास्ट टाइम. वी फिनिश्ड ओनली. पहला सेंटेंस था सूरज मशरिक से निकलता है. मैंने वहीं से स्टार्ट किया है. आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. सूरज मशरिक से निकलता है. हु विल ट्रांसलेट? सारा, यू टेल. सूरज मशरिक से निकलता है. स्टार्ट. सन. द सन. ओके, निकलता है. ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है. पता है ना आपको? उसमें क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा. वर्ब. ओके, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर रिमेनिंग थिंग्स लेटर ऑन. ओके, ये हमारा असूल है, ये हमारा स्ट्रक्चर है. ओके, स्टार्ट. सूरज मशरिक से निकलता है. द सन. अगर अकेली चीज है देन व्हाट वी विल डू? इफ द थिंग्स इज सिंगल, इवन द पर्सन और थिंग्स इज सिंगल, देन व्हाट वी विल डू? विद वर्ब. यू नो दैट वन? सारा, आर यू देयर? सारा, आई कैनॉट हियर यू. व्हाट हैपेंड? यस, आवाज कट रही है. आई डोंट नो, बट एनीवे सूरज मशरिक से निकलता है. हाउ यू विल से? देन सन. द सन निकलता है. निकलता है. क्या इंग्लिश है? आई डोंट नो. ओके, यू डोंट नो. हानिया, कैन यू टेल मी? निकलता है. बेटा आपको पता है निकलने की इंग्लिश क्या होगी? नो प्रॉब्लम. इफ यू बोथ डोंट नो आई विल टेल. फर्स्ट यू ट्राई. आपको पता है बेटा? हानिया, यू ऑल्सो डोंट नो? ओके बेटा, नो इश्यू. निकलना की इंग्लिश है राइस. राइस, उठना. राइस होता है ना, राइस, उठना किसी चीज का.
ओके उठना राइस, लेकिन ये दैट इज सन इज सिंगल, सिंगल चीज है तो उसके वर्ब के साथ क्या आएगा, एस और ई एस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एस और ई एस हम लगाएंगे, ठीक है बेटा। सन राइसेस, सन राइसेस, मशरक की इंग्लिश क्या है, मशरक। तारा योर टर्न इज देयर, मशरक की इंग्लिश भी नहीं आती आपको, ओके नो इशू, नो इशू, डोंट वरी अबाउट दैट। हानिया कैन यू टेल मी मशरक, मशरक in English? Maybe Hania's net problem because she is walking maybe somewhere. Okay, then मशरिक की English है east, east. Okay, the sun rises in the east. Okay सारा, the sun rises in the east. Rises s लगेगा, why? Because sun is single. Okay, the sun rises in the east, you will say like that. The sun rises in the east. Well done. East. ईस्ट, ईस्ट होता है मशरिक, वेस्ट होता है मगरिब। ओके कहते हैं ना मशरिकी लड़की है, ईस्टर्न गर्ल है। ओके वेस्टर्न गर्ल, वेस्टर्न कपड़े होते हैं ना जैसे नंगे पंगे होते हैं तो वो वेस्टर्न कहलाते हैं, ठीक है ना। मगरबी, मगरबी लिबास है ये, ऐसे इसलिए बोलते हैं इसको, मशरिकी लड़की है, ईस्टर्न गर्ल है, अच्छी लड़की है, वो इस तरह भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। मशरिक, ईस्ट होता है EAST, ईस्ट, ईस्ट मशरिक, और वेस्ट होता है मगरिब, शुमाल जनूब, नॉर्थ एंड साउथ। ओके हानिया, ईस्ट, ईस्ट इज द मशरिक, ईस्ट। ओके बेटा, ईस्ट मशरिक को कहते हैं ईस्ट। सन राइसेस इन द ईस्ट। सारा कैन यू रिपीट दिस ऑल सेंटेंस? The sun rises in the east. ईस्ट, ओके ईस्ट किसको कहते हैं, मशरिक को। तो मैंने आपको बताया मगरिब को क्या कहते हैं, West. वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहते नहीं है, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। ओके इस तरह होता है। हानिया Yes. कैन यू से दिस सेंटेंस? The sun rises in the east. राइसिस, एस बी है, द सन राइसिस, In the east. द सन राइसिस बोलो बेटा। The sun rises in the east. वेल डन। ओके नाउ हानिया's टर्न इज देयर। हानिया, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, जमीन की इंग्लिश क्या है? The earth वेल डन। घूमती है, revolves यस वेल डन। around the sun. रिवॉल्व्स के साथ एस भी आएगा, रिवॉल्व Revolves the sun. अराउंड द सन, वेल डन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वेल डन। ओके सारा कैन यू से दिस सेंटेंस? And the earth revolves around the sun. रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स। ओके बोलो रिवॉल्व्स, Revolves एस भी बोलो, रिवॉल्व्स। around the sun. दोबारा बोलो, ये क्या लफ्ज है? Revolves. वेल डन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके यानी कि अच्छा इसकी जगह पे आप मूव भी कह सकती हो, मूव का मतलब है हरकत करना, लेकिन ये है गर्दिश करना, घूमना, ठीक है। और भी आप वर्ड लगा सकती हो, जरूरी नहीं है रिवॉल्व ही लगाओ, ठीक है। क्या है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर फॉर सारा। पानी 0 डिग्री पर जमता है, पानी The water जमता है, बर्फ। नो जमुना की इंग्लिश क्या है? जमुना नहीं आती। ओके हानिया, Freeze. वेल डन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हानिया, प्लस पॉइंट, वेरी गुड। द कैसे बनेगा सारा? शी है वाटर, freeze. फ्रीज एस भी लगेगा इसके साथ, Freeze 0 degree. वेरी गुड। फ्रीजिज आएगा, देखो फ्रीजिज आएगा क्योंकि वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन एंड दैट इज सिंगल, वी विल कंसीडर एज अ सिंगल। ये अनकाउंटेबल नाउन हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ा था ना, अनकाउंटेबल नाउन है वाटर। ओके हानिया, द वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन सो दैट्स व्हाई दिस इज वी विल कंसीडर एज अ सिंगल। सो इसके साथ फ्रीजिज आएगा। ओके फ्रीज नहीं आएगा, वाटर फ्रीजिज एट 0 सेंटीग्रेड। इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सेल्सियस भी कहते हैं। ओके हानिया कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस? Water freezes at 0 degree. डिग्री ये क्या है? सी, ये इसको क्या बोलेंगे? 0 Centimeter. सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड। ओके बेटा, ओके सी, और ये डिग्री को ये जाहिर करता है। ओके नाउ हुज टर्न? सारा's टर्न। चांद रात को चमकता है, चांद की इंग्लिश क्या है सारा? मून, वेल डन। चमकता, चमकते की इंग्लिश क्या है? चमकता shine. तो ये सिंगल है ना, सिंगल है तो क्या आएगा? शाइन्स, वेल डन। रात को, रात को की इंग्लिश क्या होगी? Night. एट नाइट, एट नाइट बोलेंगे। ओके The moon shines. द मून शाइन्स In एट night. नाइट, इट नाइट नहीं, एट, एट बोलो, एट। द मून शाइन्स एट नाइट, यू हैव टू से लाइक दैट। The moon shines at night.
वेल डन। हानिया, कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस बेटा? The moon shines at night. वेल डन। नाउ हानिया's turn is there. ओके हानिया, आसमान नीला नजर आता है। हाउ Sky विल is यू से? blue. The sky is blue. नो नो नो, नजर आता है। नजर आना की इंग्लिश क्या है? नजर आना see. सी होता है देखना। एक मैंने और बताया था, जैसे कि गौर से एक चीज को देखते हैं तो वो क्या होगा? गौर से मैंने पहले भी बताया था ये आप लोगों को। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस सी और एक और था, और एक और, तीन चीजें हैं। मैंने ऑल आई डिस्क्राइब यू बिफोर। twice. जी बेटा। नहीं वो नहीं है। ओके ट्राई। Twice. नजर आता है। Twice. नो बेटा, नजर आना, नजर आना की क्या है? See. नो, सी नहीं, सी के अलावा कोई और देखो, वैसे दिखाई देता है, बट हियर वी विल यूज लुक्स। लुक्स, स्काई लुक्स ब्लू। The sky looks blue. लुक होता है देखना, सो स्काई लुक्स ब्लू। The sky looks blue. वेल डन। सारा, कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस प्लीज? The sky looks blue. वेल डन। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर। बर्फ गर्मी में पिघलती है। बर्फ की इंग्लिश क्या है सारा? बर्फ की इंग्लिश। अच्छा, पिघलती, पिघलती की इंग्लिश आती है? नो। गर्मी, कुछ भी नहीं आती इसमें से, गर्मी। चलो नहीं। हानिया टर्न नाउ। हानिया बेटा, बर्फ की इंग्लिश आप ट्राई करो, अगर नहीं आएगी डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल से। ओके, यू ट्राई फर्स्ट। Ice. वेल डन, एक्सीलेंट हानिया। बर्फ की इंग्लिश है आइस। वेल डन। पिघलती है? Melt. मेल्ट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, तो गर्मी की इंग्लिश क्या होगी? गर्मी में Ice melt in summer. सीजन को कहते हैं समर, एक्चुअली समर गर्मियों में, गर्मियों में, बट दैट इज गर्मी। Hot. हॉट भी कह सकती हो, यू आर राइट हानिया, बट इधर लगेगा हीट। अच्छा, अपना सेंटेंस बनाओ। अब ये कैसे बनाया आपने? Ice melted in hot. मेल्टेड क्यों बोला आपने? वाई? Melt. मेल्ट नहीं बेटा, आइस एक सिंगल है तो क्या लगाओ? Melt. मेल्ट्स। वेरी गुड। आइस मेल्ट्स इन हीट, ऐसे होगा। कैसे होगा? Ice melts. Ice melts in heat. वेल डन, वेल डन हानिया, एक्सीलेंट। ओके, नाउ सारा's turn is there. Okay सारा, कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस फर्स्ट? Ice melts in heat. वेल डन। ओके, अब कोई बात नहीं, अब सारा को फिर चांस दे देते हैं क्योंकि सारा ने वो नहीं बताया। ओके, नो इश्यू। सारा, यूर टर्न इज देयर। दो जमा दो चार होते हैं, जैसे कि एक मुहावरा भी है, दिस रिटन ऑलरेडी, यू कैन से दिस वन। 2 plus 2. वेरी गुड, एक्सीलेंट। 2 plus 2, what is this one what? 4 No, no, what is this one? is equal. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेल डन। बड़ी मुश्किल से मैंने तस्वीर ढूंढी थी ये वाली। अच्छा, उसमें 2 plus 2 ये क्या है? इक्वल। अच्छा, 2 plus 2 को आप ये होते हैं इक्वल्स आएगा। इक्वल्स कितने हैं? 4। ओके, रिपीट दिस सेंटेंस। 2 plus 2 is equal 4. ये मुहावरा भी है, दो जमा दो चार होते हैं, हम कहते हैं ना, ऐसे ही है ना। वन मोर टाइम से। 2 plus 2 is equals 4. वेल डन, एक्सीलेंट। हानिया, कैन यू से दिस वन ऑल्सो? 2 plus 2 equals 4. इज इक्वल बोला है ना आपने, इज नहीं आएगा सारा, इज नहीं आएगा। 2 plus 2 इक्वल्स, इक्वल्स आएगा। ओके, 2 plus 2 equals 4। दोबारा बोलो, आपने गलत बोला था शायद। 2 plus 2 equals इक्वल्स 4. 4। वेल डन हानिया, अगेन। 2 plus 2 equals 4. वेल डन। ओके, नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज देयर। हानिया की बारी है। इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इंसानों की इंग्लिश बताओ हानिया। Humans. वेल डन, एक्सीलेंट। ह्यूमंस ही कहते हैं। Oxygen. ऑक्सीजन, ठीक है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। चाहिए मतलब कि मैं आपको इधर थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। जरूरत की इंग्लिश क्या है, इतना बता दो। जरूरत की इंग्लिश। जैसे यहाँ जरूरत नहीं लिखा हुआ, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सो आप कौन सा वर्ब लगाओगी? चलो वर्ब मैं बता देती हूँ कि जरूरत है, जरूरत की इंग्लिश बता दो अब। जरूरत। मुझे ये जरूरत है, चाहिए भी कह सकते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जैसे आप कहती हो। Want. इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। वांट, वांट का मतलब होता है चाहना, लेकिन मैं कह रही हूँ यहाँ पे जरूरत लगाओ, जरूरत। Humans want oxygen. वांट भी कह सकती हो, दैट इज करेक्ट, बट जरूरत मैंने बोला है यहाँ पे। वांट का मतलब होता है ना बेटा, वांट और उसमें फर्क जरूरत में। चले मैं आपको बता देती हूँ।
आपको आती है सारा जरूरत की इंग्लिश? नो मैम। ओके, नो इशू। वो कहते हैं उसको नीड। देखो नीड, जहां पे नीड और वांट दोनों का मतलब है चाहना, यानी कि चाहना, ओके कह सकती हो। लेकिन नीड जो होता है ना, इसकी जरूरत होती है। जो वांट होता है ना, खुद से चाहना, मैं यानी मुझे चाहिए कोई चीज, मैं चाहती हूँ कि ये करूं, वो मेरी विश है। लेकिन ये मेरी विश है या नहीं है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना, यानी कि नीड, इसमें ये फर्क हो गया। जरूरत यानी जरूरत, उसके बगैर आप रह नहीं सकते हो, इसमें ये फर्क आ जाता है, ठीक है ना। वांट वो चीज होती है, मुझे पानी चाहिए, चलो ये मेरी विश है कि मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको वो लाजम ही चाहिए, वो नीड है आपकी। नीड मतलब कि वो जरूरत है आपकी, ठीक है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। दैट इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट, दिस इज न्यू टॉपिक इज कमिंग, डेली रूटीन। ओनली आवर 5 minutes इज लेफ्ट, नो इशू, टुमारो विल कंटिन्यू दिस वन। अगर हम रिपीट कर लें अपना लेसन, दैट इज मोर गुड। ओके, पता चले कि आता भी है कि नहीं। किसकी बारी है? मेरी। आप बताओ, सूरज मशरिक से निकलता है, हमने कैसे बनाया था जुमला? एनीथिंग यू रिमेम्बर और फॉरगेट एवरीथिंग? सूरज, सन, द सन, कैसे बनाया था? द सन, देखा, भूल गया। मशरिक की मशरिक, इंग्लिश। मशरिक की इंग्लिश अब मैं क्यों बताऊं, पहले बताई थी ना। भूल गया। निकलता, निकलते की इंग्लिश बता दो। अच्छा, लास्ट टाइम भी ये आप ही का सेंटेंस था, नहीं था आया, फिर हानिया ने इसको किया था। जी हाँ। ओके, हाँ बोलो। निकलता, गौर नहीं किया ना आपने। निकलता मैंने आपको कहा था, उठना, किस चीज का उठना ऊपर, क्या होता है? राइस। राइस, वेरी गुड, राइस, राइस, राइस एक नहीं आएगा, तो ये इसके साथ Right. सिंगल चीज है, तो क्या बनेगा? सन। The sun rise, एस भी rises, तो आएगा ना उसके साथ, एस भी right, लगाओ। राइसिस, right, द सन right. राइसिस। It, है क्या था? it, मशरिक की इंग्लिश क्या है? मशरिक। भूल गई। मशरिक। जी। हानिया? Yes. The मशरिक, sun rises from the east. ईस्ट आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा बेटा। इन द ईस्ट आएगा, इन द ईस्ट, फ्रॉम नहीं आएगा। यू कैन से द सन राइसिस इन द ईस्ट। The sun rises in the east. वेल डन। सारा, कैन यू रिपीट दिस वन? The sun rises in the east. ईस्ट, ईस्ट East. वेस्ट, ईस्ट वेस्ट जैसे होता है, ईस्ट। ओके, EAST, ईस्ट। डोंट फॉरगेट नेक्स्ट टाइम प्लीज। ओके, नेक्स्ट, हानिया टर्न नाउ। हानिया, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। The earth revolves around the sun. रिवॉल्व्स, एस भी आएगा बेटा, मैंने आपको Revolves बताया है वो around सिंगल, सिंगल है तो रिवॉल्व्स आएगा, एस भी। सारा, कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस? The earth revolves around the sun. वेल डन। नाउ सारा टर्न। पानी 0 डिग्री पर जमता है। Water जमने की क्या थी? देखा, फिर सारा कुछ भूल गई आप, ऐसे नहीं चलेगा, फिर क्या फायदा जमने। जमने की। अभी पहले भी ये आप ही पे आया था सेंटेंस, अब देखो फिर भूल गया। जमने की क्या थी? अपनी फ्रिज से याद कर लो, फ्रिज नहीं है हमारे, फ्रिज, उसके ऊपर वाला हिस्से को क्या कहते हैं? बर्फ। फ्रिज नहीं होती, फ्रिज, उसके ऊपर वाला जहां से खोलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसमें बर्फ हम जमाते हैं हम, क्या करते हैं उसमें? यहाँ बर्फ तो जमाते हैं, तो क्या लेकिन बोलते हैं उसको, बोलते क्या है? ज़हन में नहीं आ रहा। वो फ्रीजर नहीं होता, फ्रीजर, अच्छा, ऊपर फ्रीजर वाला नहीं। हिस्सा फ्रीजर कहते हैं ना उसको। हम बात सुने, हम उसे फ्रीजर नहीं कहते। तो आप क्या कहते हो उसको? हम कहते बर्फ खाना। तो इंग्लिश में फ्रीजर हो गया ना, फ्रीजर कहते हैं उसको, ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है, फ्रीजर में रख दो इसको। हम कहते नहीं, नॉर्मली हम कहते हैं ये आइसक्रीम है, इसको फ्रीजर में रख दो, नीचे ना रखना, फ्रीजर, ऊपर वाला पार्ट फ्रीजर कहलाता है। ओके, बर्फ खाना ना बोलना नेक्स्ट टाइम। अब यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू हैव टू से फ्रीजर, ओके, एटलीस्ट। ओके, देन हुज टर्न दिस वन, योर और हानियास? आप ही की बारी थी, चलो बनाओ इसको, फिर फास्ट फास्ट करो, लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। The water freezer Freezes, freezes it एट, 0 इट नहीं है, एट है, एट, ओके, एट 0 सेंटीग्रेड। ओके, हानिया, कैन यू रिपीट दिस वन? Water freezes at 0 centigrade. वेल डन। ओके, बाय बाय, लेस देन अ मिनट रिमेनिंग, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो, एंड वी विल स्टार्ट हियर, बेटर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहीं से ही हम दोबारा शुरू करेंगे ताकि हमारी रिवीजन हो जाए, ठीक है। आपको सारे सेंटेंसेस भूल गए हानिया? ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन फास्ट फास्ट विल कंटिन्यू एंड विल स्टार्ट द न्यू लेसन, डेली रूटीन, नो प्रॉब्लम, इसके बाद आएगा, ठीक है। पहले हम यहीं से थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, ठीक है। ओके,